Hello and welcome to my channel. And as we discussed yesterday, the levels, and I sent in the Telegram channel. These are the levels for Bank Nifty. Just a moment. Let me show you. Yeah, these are the levels for Bank Nifty, which are given in the Telegram channel. You can see here Bank Nifty, and you can also see here the levels. So this is what happened today in the market. You can see the 28th date. I told you to guys, whenever it crosses above 5 minutes candle, you can buy it, and it got opened above this and it went up. So this is for Bank Nifty, and this is for HDFC, which I given yesterday, levels in Telegram channel. You can see here for HDFC, and this is what happened in HDFC. You can see it was crossed above this line, and again it went up to the first target and second target, and it shooted up also. So this is for Nifty 50. Yesterday, this is the same level which I posted in Telegram channel. So let's see what happened with the level. See, this is what happened after opening in the market. I mean, after Nifty opens and it shooted up. And these are the levels for IndusInd Bank, which I given. And this is what happened with IndusInd Bank. It shooted up like anything. And this is for Reliance. Reliance was not given that much. I mean, there is no trade. I mean, if you taken the trade in Reliance, your stop loss might got hit. So let's see what happened with Reliance. See, it opened, went up, came down, went up. So mostly I don't think there is no much momentum in Reliance, especially in Reliance. And let's go for SBIN. SBIN, these are the levels you can see here, and you can see this is what happened in SBIN, and this is for TCS again, and this is what happened in TCS today. It opened above, it almost made to the high of first target, and it came down, and it given the entry here, and it never hit our stop loss, and it given the first target again. So so that is the reason I ask you guys to join into our Telegram channel, so that you can know what are the best levels to trade. Okay, all right. Next, let's go to for tomorrow's कल के हिसाब में क्या हुआ. I mean, कल क्या हो सकता है, I mean, according to the indicators. All right, if Bank Nifty is able to open above 33,761.00 paisa, it will go up, and the resistance level is at the first resistance we will face at 33,844 or 850, in that range, and the next resistance area will be somewhere around 33,971.65 paisa. If that breaks, then the ultimate target will be 34,124.75, that is 34,124.75 paisa. So this is for the upside, and let's discuss for the downside now. If Bank Nifty is able to open below 33,556.00 paisa, we will face a support at 33,269.50 paisa. Sorry, 80 paisa. So there will be a resistance, support there. So अगर उसको भी तोड़ के बंद हो गया नीचे, I'm sorry, I told you guys my Hindi is not that good, so just bear with me. And अगर ये टूट के बंद हो जाएगा, कौन सा लेवल है, 33,258.95 पैसा को तोड़ के बंद हो जाएगा 5 मिनट का कैंडल,
तो अगला सपोर्ट रहेगा आपके लिए 32,778.55 पैसा। तो ये है कल के लिए लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। एंड लेट्स जंप इनटू द निफ्टी हियर। अगर निफ्टी आपको ओपन होता है 14,894.55 पैसे के ऊपर, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 14,974.55 पैसे के पास। अगर ये जोन को तोड़ के बंद होता है, वो जोन टॉप लेवल है 14,986.05, अगर इसको तोड़ के बंद हो सकता है कल के दिन, ऊपर में सस्टेन कर लेगा एक 20 मिनट के लिए, तो आपको ये जाने का आशंका है 15,146.80 पैसा। दिस इज द टारगेट फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। दोज आर द लेवल्स स्पेशली। एंड अगर कल के दिन निफ्टी 14,839.95 पैसा के नीचे खुल गया या बंद हो गया 5 मिनट में या 15 मिनट में कैंडल में, तो आपको पहला सपोर्ट दिखेगा 14,788.30 पैसा के पास। अगर 14,755.15 पैसा को तोड़ के बंद होता है नीचे 5 मिनट में या 15 मिनट का कैंडल, तो ये आ सकता है 14,630, ये तोड़ दिया 14,623.75 तोड़ा, तो ये आ जाएगा 14,553 तक। तो ये है लेवल्स फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। एंड नाउ लेट्स गो टू रिलायंस। ओके, अगर रिलायंस 2007.05 पैसा के ऊपर ओपन हो गया, अगर ओपन हो गया तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 22.40 के पास। आई रिपीट, इट इज़ 22.40 पैसे के पास। अगर वो भी आपको तोड़ के बंद होता है तो आपको जाएगा ये 29.80 पैसा तक जाएगा। तो आपको एक देख लेना है, अगर ये जोन को ब्रेकआउट करके 20 मिनट तक, क्योंकि ये अभी मेरे को स्ट्रांग ही दिख रहा है इधर, तो ये जोन को ब्रेकआउट दिया तो 20 मिनट तक सस्टेन करना ज़रूरी है। और अभी नीचे का इसमें बात करेंगे रिलायंस में, तो इफ़ इट इज़ able to open below 19,090.5 paisa and it closes below or opens below this level, it will get a support at 1978.90 paisa. अगर ये जोन को तोड़ के बंद होता है रिलायंस कल के दिन, वो जोन किधर है 1973.70 पैसा के पास, अगर ये जोन को तोड़ के बंद होता है और सस्टेन कर लेता है 20 मिनट तक नीचे, तो ये आ सकता है 1956.90 पैसा के पास। अगर वो भी तोड़ दिया तो फ़िलहाल के लिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट दिख रहा है 1928.45 पैसा। तो ये है फॉर रिलायंस कल के लिए। और कल के लिए HDFC का बात करेंगे। अगर HDFC ओपन हो गया 1479.95 पैसा के ऊपर, तो ये जाने का कोशिश करेगा। एक सेकंड, मेरा चार्ट लोड हो रहा है। ये जाने का कोशिश करेगा 1494.65 पैसा के पास। अगर ये टूटा तो ये जाएगा 1507.70 पैसा, 1507.70 पैसा तक जाने का आशंका देख सकते हैं हम। HDFC अगर ये ओपन हो गया ऊपर और ये तोड़ दिया 1494.80 पैसा को,
तोड़ दिया तो। अगर HDFC बैंक नीचे खुल गया 1468.55 पैसे के नीचे, तो ये आ सकता है 1457 तक। अगर ये जोन को पार कर दिया 1453.90 पैसा को पार कर दिया, तो ये आ जाएगा 1440.40 पैसे के पास। तो ये है लेवल्स फॉर HDFC बैंक। एंड लेट्स जंप इनटू द TCS नाउ। और TCS अगर कल के दिन ओपन होता है 3128 के ऊपर, तो आपको पहला रेजिस्टेंस दिखेगा 3148.45 पैसे के पास। अगर वो टूटा तो ये जा सकता है 3187.55 पैसे के पास। अगर ये कल के दिन ओपन होता है नीचे में 3107.60 पैसा के नीचे, आई रिपीट इट इज़ 3107.30 पैसा के नीचे, तो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 3099.95 पैसे के पास। अगर वो भी टूट गया तो आपको अगला सपोर्ट मिलेगा 3090.70 पैसे के पास। अगर वो भी टूट गया तो ये अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा आपके लिए, वो वाला 3075.50। ये बहुत दिन से हमारे को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो देखेंगे अगर इसको ब्रेकआउट करे तो कितना दूर जा सकता है। अगर किसी दिन ब्रेकआउट कर दिया तो चलिए अभी SBIN में जाएंगे। अगर SBIN ओपन हो गया 364.60 पैसा के ऊपर, तो ये जाने का आशंका लग रहा है मेरे को 370.95 पैसा के पास। अगर ये टूट के बंद होता है एंड सस्टेन कर लेता है 20 मिनट तक ऊपर में, 5 मिनट के कैंडल में 20 मिनट तक, तो ये नेक्स्ट टारगेट आपको रहेगा, ये वाला आपका टारगेट है, ये वाला 377.85 पैसा के पास है। तो ये होगा कल के लिए SBIN के लिए। और अगर यदि कल इफ इट इज़ ओपनिंग बिलो 361.60 पैसा or closes below any 5 minutes or 15 minutes candle, so I am seeing a first support at 350.80 paisa. If it is closing below 350.10 paisa, I am seeing a fall till 346.05 paisa. This is for tomorrow levels and for SBIN. And let's now jump into IndusInd Bank. और अगर IndusInd बैंक आपको खुलेगा 929.75 पैसा के ऊपर, ये जा सकता है, एक सेकंड दीजिए, हाँ ये जा सकता है। पहला रेजिस्टेंस आपको फेस होगा 937.50 पैसा 55 पैसा के पास। अगर वो भी टूट के बंद हो जाएगा, आपको फेस होगा 949.60 पैसा के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एंड अगर यदि कल 920.35 पैसा के नीचे खुलेगा मार्केट, आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 914.20 पैसा के पास। अगर ये 920.35 पैसा को भी पार करके बंद हो, खुल गया या बंद हुआ 5 मिनट का कैंडल मॉर्निंग में, तो आपको इधर जोन है, ये जोन को थोड़ा मेरे को लग रहा है तो थोड़ा ये रेस्पेक्ट करने का चांसेस है। तो वो वाला है 917.30 पैसा। तो ये है लेवल फॉर टुमारो फॉर IndusInd बैंक। अगर ये टूटा तो और नीचे आने का आशंका लग रहा है मेरे को, ये आएगा 881.75 पैसे के पास। तो ये है कल के लिए लेवल्स। एंड I'll give you these levels in description, in the description below, and also I'll give you the phone number
if you want this indicator access, you can call me up. And from tomorrow I gonna give you a new levels, I mean including the levels which I usually give you. With that, I'm adding up the other levels. Maybe by today, you can expect that by today, somewhere around before 8 o'clock. सो वो लेवल्स भी आपको पोस्ट कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में. तो कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बेशक ज्वाइन कर सकते टेलीग्राम चैनल को, तो वो लोग देख सकते. मैं खाली बैंक निफ्टी का ही पोस्ट करता हूँ. अगर आपको किसी और का स्टॉक का चाहिए तो यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. दो नंबर में कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आपको मैं देख के मैं रिस्पॉन्स दे सकता हूँ. अगर किसी और स्टॉक का आपका ओपनिंग चाहिए या नहीं तो लेवल चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी ओवर देयर. एंड this is my analysis for tomorrow market, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.